بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ سائنسدانوں کی یہ صبح جلدی اٹھنے کی تحقیق آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر جو ریسرچ کی کہ صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور حضور نے فجر کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا، کیونکہ فجر کے وقت ناظرین اللہ کے احکامات کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھیں۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعمیراتی عبادت ہے۔ انہی ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسے ترک کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر چاروں نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چننا، اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرآن و تلاوت قرآن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآن و فیض و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرہ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور حکومت مراد ہے۔ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کی فرض نماز کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ اور نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی و غفلت اور کہلی کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے۔
कोई भी मौसम हो, बाकी नमाज़ों के मुकाबले में फजर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों में ख़वातीन का है। फजर में वो एहतमाम नहीं होता जो बाकी चारों नमाज़ों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना, मौसम सरमा में सुबह सर्दी का बहाना होता है, लेकिन हमारा हर बहाना और उज़र नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिल कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा रहता है कि रोज़ी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही माल कमा लें पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। हर वक्त कोई ना कोई मसला परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी आकर हम इस तमाम बेबरकती, तंगी, बेरोज़गारी और परेशानी को नमाज फजर की अदम अदायगी के पस मंज़र में देखें तो मालूम होगा यह सब बेबरकती इसी वजह से है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हर दर्जे कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार है। हजूर के इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिनमें रिज़्क़ की तकसीम और फरावानी और बरकत को नमाज फजर की अदायगी से मशरूत किया गया है। एक फरमान नबवी है जिसका मफहूम है कि रिज़्क़ तकसीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फजर के वक्त बंदों का रिज़्क़ लेकर ज़मीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाज़ा फजर के वक्त खुला होता है, फरिश्ता उसका रिज़्क़ दरवाज़े पर रख कर चला जाता है, और जो दरवाज़ा फजर के वक्त बंद होता है, फरिश्ता उसका रिज़्क़ वापस लेकर चला जाता है। इस हदीस नबवी में फजर के वक्त दरवाज़ा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फजर के वक्त बेदार होकर नमाज फजर अदा करते हैं, उन्हें उनका रिज़्क़ अता कर दिया जाता है। दरवाज़े बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फजर के वक्त तक सोते रहते हैं और नमाज फजर की अदायगी में गफलत, कोताही को मर्तकब होते हैं, उन्हें उनके रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। हमें से अक्सर लोग अपने घरों में खैर बरकत के लिए कुरान खानी, मिलाद की महफिल के इनकाद, लूहे कुरान की तावीज़ अवेज़ा करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतवज्जो होते हैं। इससे तो इनकार नहीं कि बिलाशुबह इन तमाम महफिल मिलाद, लूहे कुरान के नक्श घर में अवेज़ा करने से खैर बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। हर खैर बरकत के दरवाजे नमाज ही से खुलते हैं। अल्लाह की तमाम नेमतों, बरकतों और रिज़्क़ के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। इसके साथ ही ये अमल भी अहम है कि फ़जर के अलावा बाकी 4 नमाज़ों में भी कारोबार में बरकत नमाज फ़जर की अदायगी से मशरूत है, इसलिए कि खैर बरकत का आगाज़ नमाज फ़जर की अदायगी ही से होता है। याद रखिए, नमाज फ़जर कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना घर की नहुसत की अलामत का आगाज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमानों को खबीस और मुनाफिक करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स जो फजर की नमाज अदा नहीं करते, मेरा दिल चाहता है कि उनके घरों को आग लगा दूं। नाज़रीन, कभी आपके ज़हन में यह सवाल आया कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है, या उस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ की गई है। और यह 5 नमाज़ें किस तरह फ़र्ज़ हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मुज़ाहरा सफ़र मिराज में उस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए। उस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पस मंज़र में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपनी खसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब ख़ास से नवाजा, अम्बिया कराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुराइयों के अजाब का नज़ारा करवाया। इस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है, और क़यामत तक के इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज इसी सफ़र में अदा की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाज़ों में नरमी की दरख्वास्त की, और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद के लिए दिन में 5 नमाज़ों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी, लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है, और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। नाज़रीन, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, और यकीनन आपके लिए भी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फ़जर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है, उसे जब आप जानोगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी यानी नींद ना आने की शिकायत होती है, जिसमें वह सारी रात सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद ना आने की बीमारी होती है, और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते,
तब कई तरह के ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। और इस नींद ना आने का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनियावी रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते हैं तो वो अल्लाह से यह सवाल ज़रूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती? आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, उन्हें ताहयात कभी भी नींद ना आने की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफ़ी नज़म है जिसका अमरीकी मुसन्निफ़ ने तर्जमा किया है, जिसका उन्वान है यानी सुबह की नमाज के बाद दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में फरिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो हम में से बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? तो वो कहते हैं, जब हम गए तो फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, और जब उनके पास से आए तो वो असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज़ों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तलू होते वक्त और शाम को ग़ुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और यह ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो जो उस वक्त उठ जाता है तो वो उस ताज़ा ऑक्सीजन से फिट रहता है, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कम मिकदार मिलती है, जिसकी वजह से वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बहुत बेचैन हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज निकलने से पहले और सूरज ग़ुरूब होने से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही न करे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान लें तो वह ज़रूर ज़रूर इन नमाज़ों में हाजिर होते चाहिए, उनको ख़ुद को घसीटते हुए आना पड़े चाहे। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाज़ों की इतनी फजीलत और अहमियत है, और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त का नमाजी बनाए और सुबह नमाज के लिए जल्दी उठने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा पर ईमान फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।